Hello everyone, this is Akshay Nagpal and I welcome you all on this channel. Today, we are going to cover section number 455 of the Companies Act 2013, read along with the rules 2014. And this chapter basically is in the continuation of the 5-chapter series of CA Final Law miscellaneous provisions. And we have already covered the 2 chapters. First was about the government company and the second one was about the removal of name of companies from the register of companies. There are going to be 5 topics in the miscellaneous provisions chapter in CA Final Law. We have already covered 2 and this is going to be the 3rd video of that series. Plus, peer review chapter in your CA Final Audit is being recorded correspondingly. Today is 1st of March and I hope it will be uploaded by 8th of March, peer review chapter, fully amended. So वो भी आप देख सकते हैं बाद में, ठीक है? तो till now, you can see the schedule which we will cover in this month and वो हम schedule के हिसाब से ही अभी भी इस chapter के बाद NCLT और NCLAT भी डलेगा जो हमारा CA Final Law का part है and schedule भी आप I section पे click करके देख सकते हैं which we will cover in this month of March. So let's go and let's read section number 455 plus rules. इसमें basically आपको एक overview देने के लिए मैं बता सकता हूँ कि dormant company basically होती क्या है. Dormant company basically एक company होती है जो कि बनाई जाती है for future purpose या फिर कुछ कंपनीज जिनका अभी काम नहीं हो रहा होता या फिर कुछ कंपनी जो इनएक्टिव कंपनी हो जाती है वो एक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेती है ताकि कंप्लायंसेस से थोड़ा बच सके या फिर कंप्लायंसेस की कॉस्ट या फिर कंप्लायंसेस थोड़े उसके कम हो सके. और रूल्स के अंदर हमारे रूल नंबर 3 टू रूल नंबर 8 हमारा इसमें चैप्टर में कवर होता है. रूल नंबर 6 में कंप्लायंसेस की बात कर रखी है which tells us about the 2 compliances that are required to be fulfilled by a dormant company. Plus रूल्स में हमें 2 चीजें और बता रखी है आफ्टर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स. First thing which is covered in rule number 3 which talks about how a company after fulfilling certain conditions can apply to the registrar for obtaining the status of dormant company. And rule number 7 and 8 के अंदर ये चीज कवर है that after a certain period of time how a company can reapply to the registrar for obtaining the status of active company again. All right. तो रूल्स का मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया. डोरमेंट कंपनी का मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया दैट व्हाट इज डोरमेंट कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी बेसिकली कैसे बनी जाती है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम अब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे थ्रू दिस चार्ट व्हिच आई हैव मेड फॉर यू. ये बेसिकली सेक्शन नंबर 455 को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है. फर्स्ट, इफ ईदर ऑफ दिस पार्ट इज सेटिस्फाइड देन द कंपनी कैन बी कॉल्ड एज डोरमेंट कंपनी. हम पहले सेकंड पार्ट पे आते हैं which is a simple thing which simply says that if a company is an inactive company then that company is also a dormant company. अब inactive company का मतलब क्या होता है वो हमें explanation में बताया गया है. explanation में क्या बताया गया है नीचे आपको I hope the screen is visible. So inactive company के अंदर basically हमें 3 चीजें बोल रखी हैं. if either of these conditions are satisfied then the company is called as inactive company. And if a company is an inactive company then correspondingly वो dormant company भी मानी जाएगी. अब ये 3 conditions क्या हैं? First thing says that a company which has not been carrying out any business. अगर कंपनी कोई बिजनेस ना कर रही हो तब वो inactive company मानी जाती है. Second चीज बोलती है that it has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years. अब इसमें एक कैच आता है कि what are significant accounting transactions. ठीक है, तो उसको भी हमें आगे एक्सप्लेन किया गया है, उस पर हम अभी आएंगे. और तीसरी चीज आती है हैज नॉट फाइल्ड एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसके अंदर हम जो एंड है उसको हम अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं. एक बार बच्चे इसमें थोड़ा सा मार खा जाते हैं, भूल जाते हैं कि एंड लिखा हुआ है या फिर और लिखा हुआ है. ये जो एंड है बेसिकली कहा क्या गया है इसके अंदर, तीसरी कंडीशन में पहले ही आ जाते हैं एक बार that if a company has not filed annual report plus financial statement during last 2 financial years. अगर लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर्स में दोनों चीजें एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फाइल नहीं करी हो एज पर सेक्शन नंबर 137 एंड एज पर सेक्शन 92, अगर ये दोनों चीजें फाइल ना करी हो
then the company shall be called as an inactive company. And अगर वो inactive company होती है, then it is called as dormant company, which we have already discussed. तो वो इसमें जो condition है, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए कि एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फाइल ना करी हो, देन इनएक्टिव कंपनी मानी जाएगी. अगर एक कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दी हो बट एनुअल रिपोर्ट फाइल ना करी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फाइल कर दी है, देन इनएक्टिव कंपनी नहीं मानी जाएगी. याद रखना ये वाली बात. ये इस सेक्शन से आप सेक्शन नंबर 164 में कंफ्यूज मत हो जाना. 164 के अंदर और लिखा गया है. ऑलराइट, तो एनुअल रिपोर्ट प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में हमने फाइल नहीं करी है, देन द कंपनी शैल बी कॉल्ड एज इनएक्टिव कंपनी. प्लस और लिखा हो गया. और सेकंड कंडीशन इज अबाउट if the company has not made any significant accounting transaction. significant accounting transaction की हम एक्सप्लेनेशन अभी पढ़ेंगे, बट इसमें बेसिकली बोल रखा है कि significant accounting transaction अगर कंपनी ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर नहीं करी, then the company shall be called as inactive company. और फर्स्ट पॉइंट वैसे भी बड़ा सिंपल है, which basically says that a company which has not been carrying out any business. ठीक है, तो इनएक्टिव कंपनी हमने कवर कर लिया यहाँ पे. inactive company, if the company is inactive company, then the company shall also be called as dormant company. ये वाला पॉइंट आई होप कवर हो गया आपका. ठीक है, अब आते हैं एक बार सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पे. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर बेसिकली ये चीज याद रखना अपना. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर हमें 3 चीजें दे रखी हैं, चार चीजें दे रखी है, 1 2 3 और 4. इफ कंपनी ये 4 चीजें कर रही है, देन वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही. ऑलराइट, क्योंकि इसमें लिखा गया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस अदर देन, याद रखना. ठीक है, तो अदर देन 1 2 और 3 और 4 अगर कर रही है कंपनी, देन वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रही है. अगर सिर्फ 1 2 3 और 4 ही कर रही है, देन वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है. और ऊपर क्या कंडीशन थी हमारी इनएक्टिव कंपनी के अंदर, दैट इफ अ कंपनी हैज नॉट मेड एनी significant accounting transaction during the last 2 financial years, then the company is an inactive company. I hope I made myself clear. कि मतलब अगर कंपनी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में सिर्फ ये 4 चीजें कर रही है, सिर्फ ये 4 चीजें कर रही है, then the company shall be called as inactive company. So all right, अगर हमने significant accounting transaction की अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ लिए, देन हमारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी कवर हो जाएगा. ठीक है, तो अब इन चारों कंडीशंस को पढ़ने के लिए हम हेड करते हैं टुवर्ड्स दिस. significant accounting transaction, I hope you can see the screen. Significant accounting transaction here means any transaction other than 1 2 3 and 4. other than 1 2 and 3 and 4 मतलब non-significant transaction are 1 2 3 and 4. other than these 4 transactions are significant accounting transactions. okay, तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है, पेमेंट ऑफ फीस बाय अ कंपनी टू द रजिस्ट्रार. अगर रजिस्ट्रार को हमने कोई पेमेंट करी है फीस की, कोई भी हो सकती है, जैसे कोई भी आरओसी के पास कोई फॉर्म जमा करा रहे हो, देन कुछ फीस पेमेंट करना इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. Second point is about payments made by it to fulfill the requirements of this act or any other law. मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई हमने पेमेंट करी है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर लॉ, आईबीसी हो गया, या फिर कोई मामला हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह हो गया, कोई भी एक्ट हो गया, उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमने पेमेंट करी है, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पेमेंट करी है, देन दैट ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. थर्ड पॉइंट इज अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स to fulfill the requirements of this act. तो आपको ये बच्चों को गलत फहमी रहती है कि मतलब a dormant company cannot issue shares. A dormant company can absolutely issue shares. तभी तो हमने यहाँ पे significant accounting transaction में उसको कवर किया है. तो shares allot कर सकती है dormant company भी, and अगर वो shares allot करती है तब वो वाली transaction को हम significant accounting transaction नहीं मानेंगे. इस पार्ट को रूल्स में भी कवर किया गया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. फोर्थ पार्ट इज अबाउट पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स. इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, या फिर कंपनी के रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने, कोई भी हमें सर्विस दे रहा है जो कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, तो फिर उसको अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर हम जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे कंपनी है,
उस कंपनी का रेंट पे कर रहे हैं, देन दैट ट्रांजेक्शन शैल नॉट बी कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस जरूर देना यार. ऑलराइट, सो इफ either of these transaction is done, then it is not a significant accounting transaction. If other than these transactions are done by a company, then that transaction shall be called as significant accounting transaction. And यहाँ पे simply बोला गया था that inactive company को significant accounting transaction जो है during the last 2 years ना करियो. If a company has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years, then that company shall be called as inactive company. और अगर inactive company हुआ, then that company shall be a dormant company as well as per the definition. I hope I have made myself clear. तो इसको complete करते हैं. Inactive company हमारा definition हो गया. Significant accounting transaction का हमारा explanation हो गया. Now coming back to the definition part. Dormant company basically covers two things. Either it is an inactive company, or if these three conditions are fulfilled, then also it is called as a dormant company. Inactive company में हमने तीन चीजें क्या क्या पढ़ी, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट थिंग, if either of these three things is fulfilled by a company, then the company is an inactive company. क्या क्या थी? पहली चीज थी if a company is not doing any business. दूसरी चीज थी annual report और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर 2 साल तक एंड लिखा है उसमें, एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर 2 साल तक फाइल ना कर रहे हो. तीसरी चीज, कंपनी हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स. दूसरी और तीसरी कंडीशन में लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रखी है. ऑलराइट, तो डोमेंट कंपनी का ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. अब दूसरे पार्ट पे आते हैं. दैट इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या हुआ? कंपनीज एक्ट 2013, 1956 की बात मत करना है इसमें, ठीक है. रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट हम लिटरल सेंस में लेके जा रहे हैं. सिमेंटिक अगर वैसे दूसरी कॉम्प्लिकेशंस में चलेंगे तो फिर कुछ भी हो सकती है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. लॉ की क्या क्या इंटेंशन थी वो हमें नहीं पता. तो अभी हम इसको सिर्फ लिटरल वे में लेंगे. दैट इट इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट का मतलब हियर इज कंपनीज एक्ट 2013 में अगर रजिस्टर्ड है कंपनी, एंड द पर्पस ऑफ द कंपनी इज टू होल्ड द एसेट. एसेट के अंदर हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आ जाएगा. एंड और फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, पर्पस हमारा था कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. देन द कंपनी प्लस नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमने एक्सप्लेनेशन अभी पढ़ा है नीचे. दैट कंपनी इफ फुलफिल्स ऑल दीज 3 कंडीशंस, देन दैट कंपनी शैल बी कॉल्ड एज अ डोरमेंट कंपनी. क्या क्या है बोले के बाद दोबारा. दैट द कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑन दिस एक्ट एंड द पर्पस इज टू होल्ड द एसेट फॉर फ्यूचर पर्पस और फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट. नॉट and the purpose is for a future project. For a future project, the company is incorporated. And the third condition is no significant accounting transaction. Significant accounting transaction क्या होती है? Other than 4 or no significant accounting transaction, that only those 4 transactions are if fulfilled, if transacted by the company, then that those transactions are not the significant accounting transaction, and the company can achieve the status of dormant company. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. अगर कोई भी डाउट हो यार तो सिंपली टेलीग्राम पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, कहीं पे भी आ जाओ, डाउट पूछ लो तो फुल ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. बाकी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा एक बार वीडियो देखो, समझ आ जाएगा अच्छी तरह से. ज्यादा मुश्किल है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर. तो सिंपली हमने ये कर लिया. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का हमने एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया. तो सेक्शन नंबर 455 हमारा कवर हो जाता है इसके साथ. हेड टू द रूल्स. बेसिकली इसमें 6 रूल्स हैं हमारे. रूल नंबर 3 टू रूल नंबर 8 which talks about basically 3 things, and those 3 things are first is about rule number 3, which tells us about how a company, after fulfilling few conditions, there are 8 conditions in there, and if a company fulfills these 8 conditions plus a special resolution is also required after fulfilling the definition of section number 455. बेसिकली क्या चीजें हुई? 10 चीजें मान लो एक तरह से आप. तो 8 कंडीशंस अलग से दे रखी है. एक चीज हमें दे रखी है कि दैट द कंपनी इज कवर्ड अंडर द सेक्शन नंबर 455, दैट इज डोरमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है उसके अंदर कंपनी कवर हो रही हो प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन. तो 8 + 1 + 1 डेफिनेशन प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस हमारी 8 कंडीशन जो हम अभी पढ़ रहे होंगे. तो रूल नंबर 3 के अंदर हमें ये चीजें दे रखी है. रूल नंबर 4 के अंदर बेसिकली बताया गया है कि फॉर्म नंबर MSC 2 के अंदर रजिस्टर ऑर्डर पास करेगा. एंड रूल नंबर 6 के अंदर हमें कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स बता रखी है. और रूल नंबर 7 और 8 में हाउ अ कंपनी कैन अचीव द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी अगेन आफ्टर बीइंग अ डोरमेंट कंपनी फॉर अ व्हाइल और व्हाटसोएवर पीरियड. सो या, तो अब एक एक करके हम रूल्स पढ़ लेते हैं.
रूल नंबर 3 पे आते हैं पहले, दैट अ कंपनी मे मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर MSC1। MSC1 जो फॉर्म है, और हाँ, अगर आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसमें मैंने फॉर्म्स का नंबर जितने भी हैं हमारे, वो हमने कंपाइल कर दिए हैं। MSC1 से लेके MSC5 तक के हैं। कौन कौन से रूल में है? रूल नंबर 3 में है यहाँ पे, एक ये रूल नंबर 4 में है, रूल नंबर 7 के अंदर एक फॉर्म है, रूल नंबर 8 के अंदर एक फॉर्म है, रूल नंबर 8 के अंदर 2 फॉर्म्स है। तो ये भी आपको कंपाइलेशन आपको आपके PDF में मिल जाएगा, विच विल बी इन योर टेलीग्राम चैनल। सो उसको भी जरूर आप जरूर देखना इफ यू नीड दीज नोट्स। 3 पेजेस में हमने कन्वर्ट खत्म करा है यार ये चैप्टर, तो इट विल हेल्प यू इन योर 1 डे रिविजन एज वेल। तो रूल नंबर 3 में दोबारा आ जाते हैं एक बार। रूल नंबर 3 में बेसिकली बोला गया है कि फॉर्म नंबर MSC1 में रजिस्ट्रार को कंपनी अप्लाई करेगी for obtaining the status of dormant company in accordance with the provisions of section number 455। section number 455 फर्स्ट कंडीशन मान लो इसको, प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए टू दिस इफेक्ट, एंड or after issuing a notice to all the shareholders of the company for this purpose and obtaining consent of at least 3/4 shareholders in value। ये बेसिकली हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन का ही पार्ट होता है। ऑलराइट, तो ये चीजें करने के बाद और 8 कंडीशंस, a company shall be eligible to apply under this rule only if no inspection, inquiry or investigation, ये पहली कंडीशन, no prosecution has been initiated and pending against the company, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन is about neither having any public deposits which are outstanding nor the company is in default of the payment। पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में बात कर रखी है कुछ कुछ, अभी हम इसको दोबारा आएंगे। चौथी बात हमने कर रखी है कि नॉट हैविंग एनी आउटस्टैंडिंग लोन वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, इसमें एक एक्सेप्शन की बात भी कर रखी है। और फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट देयर इज नो डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट और ओनरशिप ऑफ द कंपनी। एंड फिफ्थ सिक्स पार्ट पे आएंगे, नो डज नॉट हैव एनी आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी टैक्सेस, dues, duties and all payable to central government or any state government। And seventh part पे आते हैं, the company has not defaulted in any workman dues। and eighth part is securities are not listed। ठीक है, जल्दी जल्दी हमने पढ़ तो लिया बट हमें समझ कुछ नहीं आया अच्छे से, अब दोबारा समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात, कंपनी को जाना है, अप्लाई करना है फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। तो फॉर्म नंबर MSC1 में अप्लाई करेगी कंपनी रजिस्ट्रार को। ठीक है, फॉर्म नंबर MSC1 देगी, और MSC1 देगी कैसे देगी? पहले तो सेक्शन नंबर 455 की कंडीशंस जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है उसको फुलफिल करेगी, फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। उसके बाद देखेगी दैट द कंपनी की इन 8 कंडीशंस के अंदर वो ना आ रही हो, मतलब 8 कंडीशंस को ये फुलफिल कर रही हो, या ये बोल सकते हैं आप कि उसके अगेंस्ट कोई इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ना चल रही हो। ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट ना हुई हो या फिर कोई पेंडिंग ना चल रही हो। तीसरी कंडीशन, कोई पब्लिक डिपॉजिट्स पे आउटस्टैंडिंग ना हो या फिर हमने डिफॉल्ट ना कर रखा हो। चौथी कंडीशन, कोई आउटस्टैंडिंग लोन ना हो, उसके अंदर एक एक्सेप्शन है दैट इफ देयर इज एनी आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन की एक एक्सेप्शन है, अगर अनसिक्योर्ड लोन है वो आउटस्टैंडिंग चल रहा है, देन हम लेंडर, जो लेंडर होएगा उसकी कॉन्करेंस ले सकते हैं एंड उसको अटैच कर सकते हैं फॉर्म नंबर MSC1 के अंदर। तो ये हमारी एक एक्सेप्शन बनेगी। प्लस फिर पांचवी कंडीशन आती है कि कोई हमारा डिस्प्यूट ना चल रहा हो कि कंपनी की मैनेजमेंट का डिस्प्यूट, की कौन मैनेजमेंट है, ओनरशिप कौन है, किसकी ओनरशिप है कंपनी पे, इसका कोई डिस्प्यूट ना चल रहा हो। सिक्स्थ कंडीशन है हमारी कि कोई भी हमारे स्टैट्यूटरी टैक्सेस, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज वगैरह का लाइबिलिटी ना चल रही हो गवर्नमेंट को। सेवंथ कंडीशन है हमारी कि कोई वर्कमैन ड्यूज के कोई डिफॉल्ट ना कर रखा हो हमने। और एट्थ कंडीशन है कि कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। इसका सिंपली मतलब हो गया कि कोई भी लिस्टेड कंपनी डोरमेंट कंपनी नहीं हो सकती। याद रखना ये वाला पॉइंट, अच्छे से याद रख लो कि कोई भी लिस्टेड कंपनी डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकती। MCQ में पक्का टेस्ट हो सकता है ये वाला पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत छुपा के लिखा गया है। एट्थ कंडीशन दे रखी है रूल नंबर 3 के अंदर, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, याद रखना ये वाला पॉइंट कि लिस्टेड कंपनी कभी डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकती। ऑलराइट, तो रूल नंबर 3 हमारा इसी के साथ खत्म होता है। रूल नंबर 4 में छोटी सी बात कर रखी है दैट एज सुन एज द रजिस्ट्रार इज लाइक registrar is convinced that all the conditions are satisfied, then it can basically issue the order in form number MSC2। तो पढ़ लेते हैं इस बार, इसको एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। द रजिस्ट्रार ऑन कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन shall allow the status of government company to the applicant in form number MSC2। बेसिकली MSC2 के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 5 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बेसिकली बोला गया है कि रजिस्ट्रार रजिस्टर मेंटेन करेगा ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज का
as per rule number 5 on its website www.mca.gov.in or any other website notified. ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल नंबर 5 नहीं आएगा आपका। रूल नंबर 6 में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर रखी है। पहली रिक्वायरमेंट हमारी है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, और दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में। मैंने आपको जो पहले बोला था कि रूल नंबर 6 में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनुअल फाइलिंग, वो रूल नंबर 7 के अंदर है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। रूल नंबर 6 में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें सिंपली बोल रखा है कि अगर ओपीसी कंपनी है तो 1 डायरेक्टर, और प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर्स, एंड पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में बोल रखा है दैट द कंपनी नीड नॉट रिक्वायर टू फुलफिल द कंडीशंस एज गिवन इन सेक्शन नंबर 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑलराइट, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। According to rule number 6 of the company's rules 2014, a dormant company shall have a minimum number of 3 directors in case of public company, 2 directors in case of private company, and 1 director in case of OPC. Rotation of auditors के बारे में, according to rule 6 of the company's miscellaneous rules 2014, the provisions of the act in relation to the rotation of auditors which are covered in section number 139 shall not be applicable to the dormant company. मतलब auditors जो हमारे होंगे वो रोटेट ना भी हो तो चलेगा। मतलब एक ऑडिटर हमारा 5 साल या 10 साल वाली जो कंडीशंस गिवन होती है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स या 1 कंसेक्यूटिव टर्म इन सेक्शन नंबर 139, उसको फुलफिल करने की डोमेंट कंपनी को जरूरत नहीं है। रूल नंबर 3 में क्या टेस्ट हो सकता है हमारा, जो मैंने बोला था कि लिस्टेड कंपनी कभी हमारी डोमेंट कंपनी नहीं बन सकती। रूल नंबर 6 में ये टेस्ट हो सकता है कि सेक्शन नंबर 139 हमारा ये ऑडिट में टेस्ट हो सकता है कि डोमेंट कंपनी दे दी, वहां पे रोटेशन के प्रोविजन दे दिए, फिर यू विल हैव टू से दैट डोमेंट कंपनी पर ये वाले प्रोविजंस नहीं लगते एज पर रूल नंबर 6 टू द रूल नंबर 6 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। ऑलराइट, अब रूल नंबर 7 पे आते हैं व्हिच टेल्स अस अबाउट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स अगेन। एंड इसमें बेसिकली बोल रखा है दैट एक एनुअल रिटर्न जाती है, उस एनुअल रिटर्न का नाम होता है रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, फॉर्म होता है MSC 3। ऑलराइट, और ये हमारा 30 डेज के अंदर अंदर चला जाना चाहिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज टू द एंड ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। ऑलराइट, ये चीज जाएगी। प्लस जो हमने एक बात करी थी कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर, दैट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर अगर हम सिक्योरिटीज भी अलॉट करते हैं, देन दैट ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। और अगर कंपनी अलॉट करती भी है फिर भी कंपनी अप्लाई कर सकती है। तो उसी के आगे बढ़ाकर ये वाली बात कर रखी है यहाँ पे, दैट द कंपनी शैल आल्सो कंटिन्यू टू फाइल द रिटर्न और रिटर्न्स ऑफ अलॉटमेंट एंड चेंज इन डायरेक्टर्स। अलॉटमेंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इट शैल कंटिन्यू टू फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, और चेंज इन डायरेक्टर्स अगर होते हैं देन आल्सो द कंपनी शैल हैव टू रिक्वायर टू फाइल द रिटर्न ऑफ दैट। ऑलराइट, अब एक ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इन केस ऑफ अ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट or annual returns for 2 financial years consecutively, the registrar shall issue a notice to that company and enter the name of such company in the register maintained for dormant companies। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। पहले हमने जो पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा था कि सॉरी इनएक्टिव कंपनी में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, इनएक्टिव कंपनी में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि इफ अ कंपनी इज एन इनएक्टिव कंपनी देन द कंपनी इज आल्सो अ डोरमेंट कंपनी। एंड इनएक्टिव कंपनी में 3 कंडीशंस थी, ईदर ऑफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आपको दिखा भी देता हूँ, इफ ईदर ऑफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन द कंपनी इज कॉल्ड एज एन इनएक्टिव कंपनी। और इनएक्टिव कंपनी बेसिकली क्या बोल रहा था कि एनुअल रिपोर्ट प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर लास्ट 2 इयर्स तक हमने फाइल नहीं करा देन वो इनएक्टिव कंपनी होती है और वो डोरमेंट कंपनी मानी जाएगी और हम अप्लाई कर सकते हैं रूल नंबर 3 में। इसमें क्या बोल रखा है, जो पॉइंट है कि अगर एनुअल रिपोर्ट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर 2 साल तक फाइल नहीं करे देन रजिस्ट्रार कैन सुओ मोटो अप्लाई, रजिस्ट्रार कैन सुओ मोटो फाइल योर नेम इन द डोरमेंट कंपनी। मतलब इसमें हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या था कि हमें अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही थी। इसमें बेसिकली बोल रखा है कि अगर 2 साल तक आपने इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स अगर फाइल नहीं करे कंसेक्यूटिवली देन द रजिस्ट्रार हमें इश्यू करेगा नोटिस टू द कंपनी एंड एंटर द नेम ऑफ सच कंपनी इन द रजिस्टर मेंटेन्ड फॉर डोरमेंट कंपनीज। तो इन दोनों में डिस्टिंक्शन समझ गए होंगे आई होप। तो ये अच्छे से याद रखना। अब एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ABC कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2010। ऑलराइट, द कंपनी डिड नॉट फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 18-19। 2018-19 में हमने
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करे, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है अभी सिर्फ। ऑलराइट, ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस द कंपनी इज नीदर कैरिंग आउट एनी बिजनेस नॉर डिड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेस कोई कंपनी बिजनेस नहीं कर रही और कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही फ्रॉम द पास्ट 1.5 years. In July 2020, the company decided to file the application. File application कब करते हैं हम? As per rule number 3. और rule number 3 में हमें चीजें बता रखी थी 10, 8 conditions plus special resolution plus one more thing, that is section number 455 का compliance. Section number 455 के अंदर हमें एक चीज बोल रखी थी अबाउट इनएक्टिव कंपनी. इनएक्टिव कंपनी में ईदर ऑफ 3 थिंग्स लिखा गया था, तो ये उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है. एंड फॉर द स्टेटस ऑफ इनएक्टिव कंपनी, फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ इनएक्टिव कंपनी. और इनएक्टिव कंपनी में 3 चीजें बोल रखी थी, अभी अभी हमने डिस्कस करी है. पहली चीज क्या थी? दैट इफ द कंपनी इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस. तो ये सीधा पॉइंट उसी में कवर हो जाएगा कि कंपनी अगर बिजनेस कर ही नहीं रही है, देन इट इज कॉल्ड एन इनएक्टिव कंपनी और कंपनी कैन अप्लाई फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी. ऑलराइट, बहुत सिंपल था इसका आंसर, बट इसमें इन्होंने तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं साथ में, और लास्ट में कंक्लूजन सेम ही दिया है जो हमने अभी डिस्कस किया. As per section number 455 subsection 1, such an inactive company which has not been carrying on any business or operations or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years or has not filed financial statements and annual returns during the last 2 financial years. तो इसमें से पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि 1.5 years के बारे में बात कर रखी है, और तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि सिर्फ हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया गया है, हमें एनुअल रिपोर्ट की, एनुअल रिटर्न की कोई भी हमें जानकारी दी नहीं है, तो हम एज्यूम नहीं कर सकते. ऑलराइट, तो इसमें हम जो पहला पॉइंट था, द कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग आउट एनी बिजनेस और ऑपरेशन, उसी कंडीशन को हम दिमाग में रख के इसको हम इनएक्टिव कंपनी डिक्लेयर करके साथ में हम बोल देंगे, कंक्लूजन दे देंगे दैट इट मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी. ऑलराइट, तो ये एग्जांपल भी कंप्लीट होते हैं. अब आते हैं रूल नंबर 8 पे. ये हमारा लास्ट रूल होएगा. इसमें बेसिकली बोल रखा है दैट द कंपनी इफ वांट्स टू बी एन एक्टिव कंपनी अगेन, देन इट विल हैव टू फाइल द एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म नंबर MSC4 प्लस. अब हमारा जो रजिस्ट्रार होगा, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है दैट द फाइल इज कंप्लीट, देन दे विल अप्लाई us they will reply us back with an order or certificate in form number MSC5. इसको हम रीड आउट कर लेते हैं एक बार. According to the rule number 8 of the company's miscellaneous rules 2014, an application for obtaining the status of active company shall be made in form number MSC4 along with the fees and all, accompanied with a return in form number MSC3. MSC3 में हमारा annual return जाता है, उसके बारे में rule number 7 में बात कर रखी है. In respect of the financial year in which the application for obtaining the status of active company is being filed. However, the registrar shall initiate the process of striking off the name of the company if the company remains as a dormant company for a period of consecutive 5 years. तो इसमें बेसिकली एक चीज और बोली हुई है कि अगर 5 साल तक कंपनी डोरमेंट कंपनी रहती है, then the registrar will have the power to remove the name of, to strike off the name of the company from the register of dormant company. Alright, तो second point पे आते हैं. The registrar, if after considering the application filed, shall issue a certificate in form number MSC5 for the status of active company. ये simple सी बात कर रखी है. और C point पे आता है where a dormant company does or omits to do any act mentioned in grounds of application in form number MSC1. MSC1 में हम कुछ grounds देते हैं, जो grounds हमें section number 455 से पता लगेगा कि मतलब either the company is an inactive company or the first conditions, that is there where there are 3 conditions given, and अगर वो 3 conditions satisfy होती हैं तो उसके against अगर हमने फाइल कर रखा है फॉर्म नंबर MSC1 वो वाली conditions. लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है where a dormant company does or omits to do any act which is mentioned in the grounds of application in form number MSC1 submitted to the registrar for obtaining the status of dormant company affecting its status of dormant company, the director shall within 7 days from such event file an application for. की point है basically simply ये बोल रहा है हमें, simply ये हमें बात कर रहा है that कुछ हमने grounds दे रखे थे फॉर्म नंबर MSC1 के अंदर for dormancy, अगर वो हम grounds को break कर रहे हैं या फिर उन grounds को हम fulfill नहीं कर रहे हैं, then the directors of the company from that date will have to
from that date till 7 days will have to file the application for active company to the registrar within 7 days. For obtaining the status of an active company, file an application. Simply ये बात बोल रखी है. और D point पे आते हैं, where the registrar has a reasonable cause to believe that any company registered as dormant company under his jurisdiction has been functioning in any manner directly or indirectly, then वो inquiry proceed कर सकते हैं under section number 206 of this act. And if after giving a reasonable opportunity of being heard the company to the company in this regard, it is found that the company has actually been functioning, then उसको treat किया जाएगा as an active company. Alright, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है ये वाला. और यहाँ पे आपको MSc 1 से लेके MSc 5 की समरी दे रखी है मेरे फॉर्म्स की, तो इसको आप पढ़ लेना अपने हिसाब से. MSc 1 में बेसिकली बोल रखा था कि एप्लीकेशन